Foundation School of Global Management, Global Family Managed Business Program. We have with us today Professor Samish Dalal, who is the in charge and a senior faculty of the Global Family Managed Business Program. He specializes in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. He is associated with family business since many years and has taught more than 5,000 students of family business. Besides being an MBA from the University of Queensland in Australia, he has also undergone management programs in Harvard and Wharton. He has played an important role in creating knowledge for family business, and his case studies are world bestsellers. Now I invite Professor Samish Dalal to take over the session. Thank you, Sujata madam. Thank you very much. It was a wonderful introduction, and God bless you for that. All right, guys. So बात ये हो रही थी कि लगभग 2 वीक पहले की बात है. I was having a chat with दीपल मैडम और सुजाता मैडम. तो दीपल मैडम मेरे को अचानक आके बोले, सर आपकी तबीयत तो ठीक है. मैं बोला क्या हो गया मेरी तबीयत को? मैंने बोलती है कि नहीं सर, अपन संडे सेशंस बंद कर दिए. सुजाता मैडम का पैरेलली मैसेज आता है, सर व्हाट हैपेंड टू संडे सेशन? मैं बोला यार, वंडरफुल पीपल आर विशिंग गुड अबाउट the program, why not restart it? So guys, we are back with the second series of the Sunday talk, okay? And the idea here है to connect with everybody on this wonderful platform so that we can keep sharing our insights. Guys, एक चीज समझ लीजिए कि फैमिली मैनेज बिजनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी बात करी जाए, जितना विचार शेयर किया जाए, जितनी बातें बताई जाए, कम पड़ेगी. और आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों है? मे बी आई नो द सब्जेक्ट बेटर. नहीं, ऐसा नहीं है गाइस. एस्पेक्ट देखो, 3 एस्पेक्ट्स. फर्स्ट फैमिली, सेकंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड बिजनेस, एंड दैट टू ग्लोबल. सो ग्लोबल फैमिली मैनेज बिजनेस, 4 एस्पेक्ट के ऊपर जब बात करनी होती है तो 100% समय कम ही पड़ेगा. तो हम लोग ने ये सीरीज को रिस्टार्ट किया है. आई सिंसियरली अप्रिशिएट ऑल द वंडरफुल पीपल हु हैव स्पेंट दिस टाइम टू बी हियर टुडे एंड बी प्रेजेंट फॉर दिस वंडरफुल ओकेजन. मैं मानता हूं कि टॉपिक बड़ा चटपटा सा रखा है, और ये क्रेडिट है ना, ये सुजाता मैडम और दीपल मैडम को जाता है. मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. वैसे चटपटा खाली नहीं है, टॉपिक में दम भी है, दम भी है. एंड उसका कारण मैं आपको बताता हूं. 2 मिनट रुकिए. आई विल कम टू द कोर ऑफ इट आल्सो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गेट ऑन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज गाइस कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फैमिली बिजनेस, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इट्स अ वेरी अ टॉपिक दैट इज नॉट seen as a glamorous topic by the youngsters. I'm serious. मतलब आज की तारीख में ऐसा देखा जाता है कि if you're talking about startup, if you're talking about fundraising, if you're talking about valuation, if you talk about the unicorns, ये सब concept की बात करते हैं तो people are interested. पर ये family business, taboo thing, उसका कुछ फायदा नहीं होता है. मतलब ये कि मेरे पापा चलाते, मेरे दादा चलाते, मेरे मामा चलाते, चाचा चलाते, मम्मी चलाती, बुआ चलाती है. What's a big deal? Guys, एक interesting चीज मैं बताना चाहता हूँ. Pay attention, guys. Everybody, just look at me. Pay attention. You know what? हम लोग को एक चीज याद रखनी चाहिए कि there's a difference between a business, I mean an entrepreneurial business and a family business. In fact, all family businesses are entrepreneurial because when they started, they were startup. ये startup का trend आज आया है, word आज आया है. बाकी जब शुरू किया था, so say for example, if your father or if your uncle started the business, तब उनके पास कुछ नहीं था. It was a startup. पर बेचारे को उस वक्त वो word ही नहीं मालूम था ना, इसलिए उसको लगा कि वो क्या एंटरप्रेन्योर है. आपको पता है हिंदी वर्ड इसका क्या है? Many of you might not know also. हिंदी वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज उद्योग साहसिक. उद्योग मीन्स व्यापार, इंडस्ट्री, बिजनेस. साहसिक माने एडवेंचरर. Just imagine this. It's so brilliant point. So any person who started that is a concept that you have to understand, that the person who started that is a udyog sahasik. And then when you become a industrialist, तब आप उसको उद्योगपति बोलते हैं. बट जब शुरू करते हैं तो ये होता है. And the point I'm trying to drive through is a very simple point, and that is that guys, family business एक वो ट्रेन है जो ऑलरेडी चल रही है, एक गति से चल रही है.
इफ वी हैव टू जॉइन दैट फैमिली बिजनेस, अपने को भी उसका हैंडल पकड़ के उतनी दौड़ लगानी पड़ेगी. इफ द ट्रेन इज गोइंग एट अ सर्टेन स्पीड, आप फट लेके चढ़ नहीं सकते. फॉर ऑल द बॉम्बे पीपल हु आर गोइंग बाय ट्रेन, कमिंग बैक बाय ट्रेन, लोकल पकड़ते हैं तो उनको मालूम है ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है तो अपने को ट्रेन के साथ थोड़ा दौड़ना पड़ता है. फट लेके अंदर चढ़ सकते हैं. उतरते वक्त भी अपने को उतरने के बाद थोड़ा दौड़ना पड़ता है, नहीं तो उसकी गति के सामने यदि अपन फौरन रुक जाते हैं, वी माइट फॉल डाउन. अ फैमिली बिजनेस इज लाइक अ मूविंग ट्रेन. उसमें आप चढ़ जाओ, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ सकते, उसकी गति के साथ दौड़ना पड़ता है. And when you're running with the speed of it, you have to understand कि इसके ये tools है, ये तरीका है, ये काम करने का approach है, etc., etc., etc. When you get into a moving train, there are pluses and minuses both. Number one, resources available, यानी कि तुम्हारे पास लोग आजू बाजू है, लेकिन at the same time the minuses are people will start interpreting, अरे तेरे को तो इजीली चढ़ने को मिल गया, क्यों? क्योंकि तू तो ओनर का बेटा है. ये pluses and minuses हैं. At the same time, if you're starting a new business, ट्रेन रुकी होती है, बंद है, उसमें आपको चढ़ के सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है. मैं दोनों के अगेंस्ट या फेवर की बात नहीं कर रहा हूं. पॉइंट मेरा एक ही है कि जब हम फैमिली मैनेज बिजनेस की बात करते हैं तो इट हैज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू टॉक अबाउट. And one of those aspects is what we're going to talk about today, the emotional side of balance sheet. Yes, my dear friends, that's the whole idea. We want to talk about the emotional side of a balance sheet. I mean, we have been talking about the word balance sheet. ऐसा कोई भी नहीं है जो आज पार्टिसिपेंट है जिसको बैलेंस शीट वर्ड के बारे में नहीं मालूम है. सबको मालूम है. एक तरफ लायबिलिटीज होती है, दूसरी तरफ एसेट होती है. नॉर्मल फॉर्मेट, नथिंग हैज चेंज्ड ओवर सो मेनी इयर्स. लेकिन कुछ वर्ड्स चेंज हो गए. इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. अलग अलग तरीके के उसके रिप्रेजेंटेशन चेंज हुए. कंसेप्ट सेम ही है यार. पैसा कहां से आया, पैसा कहां लगाया, दैट इज बैलेंस शीट. फॉर ऑल माय वंडरफुल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स और द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल बता दूं कि बैलेंस शीट का मतलब ही इतना है. इट्स अ बैलेंस शीट, मतलब कितना पैसा आया और कहां से आया एंड कहां लगाया, मतलब वेयर डिड यू इन्वेस्ट और वेयर डिड यू डिप्लॉय इट. इट्स सिंपल टर्म्स. जब मैं ये सोच रहा था कि बैलेंस शीट बिजनेस की बन सकती है, तो फैमिली बिजनेस में तो बिजनेस की तो बनती ही है, पर फैमिली की या इंडिविजुअल की बनती है क्या? थिंक अबाउट इट गाइस. एंड दैट्स द होल आइडिया व्हाई टुडेस टॉपिक हैज कम अप, दैट आर वी मेकिंग आवर ओन नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का बैलेंस शीट. गाइस, आज देखोगे तो कल सुबह बनाने का जरूर मन करेगा. ये मेरी गारंटी है, विश्वास है. यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट में से कुछ लोग तो मुझे यस्टरडे या दो बिफोर यस्टरडे मैसेज भी किए थे कि सर मैं आपका ये प्रोग्राम अटेंड करने वाला हूं तो मैं नोट्स वगैरह बनाऊंगा. मतलब सर जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके नाम से ही हम ये नोट्स आगे प्रचलित करेंगे. और आप जो नोट्स बनाएंगे, जो मेरा वीडियो साथ में जाएगा, ये हम चाहते हैं कि लोग इसको अपनाएं. फोर्स नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. एक विचार है, ये एक मूवमेंट है, एक मोमेंटम पकड़नी चाहिए. हाँ जी, ये एक मूवमेंट है जो मोमेंटम पकड़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पारिवारिक बिजनेस ही नींव है, फाउंडेशन है ऑफ द ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज आप सोच लो, आपके आजू बाजू इट्स ओनली फैमिली बिजनेस. घर के बाद छोटा सा किराना स्टोर इज अ फैमिली बिजनेस. या ये BMW का शोरूम का जो मालिक है, फैमिली बिजनेस. ऑल ऑफ देम आर डूइंग फैमिली बिजनेस. बड़ी कंपनी का जो ओरिजिन का जो आदमी होएगा वो फैमिली बिजनेस. इट ऑल स्टार्टेड देयर गाइस. और हमारे आजू बाजू है, समथिंग ऑन द राइट, समथिंग ऑन द लेफ्ट, समथिंग ऑन द फ्रंट, समथिंग ऑन द बैक. इट्स देयर. एनीवेज, तो हुआ ये था कि डिस्कशन का पॉइंट मैं आपको बताता हूं. वेरी रिसेंटली हैड अ ट्रिप टू यूके एंड मैं और मेरा बेटा बैठा था साथ में. फिर हम लोग एक जन को मिलने गए थे. दो ब्रदर्स हैं, एक भाई इंजीनियर है, दूसरा भाई बेचारा बीकॉम. अब आप बोलोगे बेचारा क्यों बोला, समझाता हूं यार. ये इंजीनियरिंग बहुत हाई फाई कॉलेज से किया, जॉब अच्छा मिला तो पहले ही साल से उसका 6 फिगर सैलरी था पाउंड में. ये जो लड़का था बीकॉम, थोड़ा डिम बैटरी भी था. तो हुआ क्या कि उसके बेचारे का तो कभी इतना सैलरी आया नहीं. उसने धंधा करने की कोशिश की, धंधा थोड़ा गड़बड़ में हो गया. फिर दूसरा धंधा ट्राई किया, उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो गया. फिर तीसरा धंधा ट्राई किया, थोड़ा अच्छा चल पड़ा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने काफी कुछ अच्छा काम कर भी लिया. सो दैट वाज गुड इनफ, अच्छा हुआ. दैट वाज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. मैं दोनों को मिला. जो इंजीनियर वाला है उसने काफी पैसा कमाया, इज्जत वगैरह की हम बात नहीं करें, काफी पैसा कमाया. पैसा कमा के एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. जो दूसरा वाला है वो भी अच्छा जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ राइट है.
लेकिन कहीं ना कहीं एक एक रह जाता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ये मेरे से बेटर है। एक क्या बोलते हैं वो, एक एक, एक छोटा सा मिसिंग लिंक रह जाता है। ऐसा एक दूसरा परिवार है जिसमें लड़का बहुत होशियार था, तो उसने सीए किया, एलएलबी किया, सीएस किया। दूसरा लड़का, उसका ही ब्रदर बेचारा नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे वाले को पहले वाले के कारण ऐसा लगा कि ऐसा है। एक तीसरी स्टोरी है कि जिसमें एक लड़का डॉक्टर बनता है एंड फिर वो बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में जाता है एंड काफी नाम कमाता है, काफी पैसा कमाता है। तो उसका भाई तो एक छोटा सा क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जो छोटा मोटा फिटिंग वगैरह का काम करता है। सवाल, मैंने ये सब कहानियां क्यों बताई? सवाल तो ये है कि यार एक तरफ यहां पे एक भाई है, सॉरी यहां पे एक भाई है और दूसरी तरफ एक भाई यहां पे है। इन दोनों के इस डिफरेंस इन दी पल्लू और इन डिफरेंस ऑफ बैलेंस को देख के मुझे आज के टॉपिक का विचार आया कि क्या ये कोई भी तरीके से ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? क्या कोई भी तरीके से इस इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सकता है कि नहीं? परिवार की बात करते हैं ना, दादागिरी की बात करते हैं, यार मेरा परिवार मेरा गौरव, मेरा परिवार मेरा गौरव, मेरा देश मेरा गौरव, सब बात करते हैं। क्या कोई तरीका है कि नहीं कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? तब मेरे को ये बैलेंस शीट का विचार आया, क्योंकि बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस शीट करने का विचार आया। तो मैंने छोटा सा बैलेंस शीट का विश्लेषण बनाया। ये मेरी नोट्स है। तो नोट्स में मैंने एक सिंपल चीज लिखने की थी कि एक तरफ होता है कैपिटल, सॉरी, दूसरी तरफ होती है एसेट्स। पुराने जमाने में मतलब जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल में ओनर्स कैपिटल, यानी कि मैं मालिक हूं ऐसा लिखा जाता है, तो होता है वर्ड ओनर्स कैपिटल, यानी कि मेरी मुड़ी, यानी कि मेरा पैसा जो मैं लेके आया हूं, मैंने कहीं से अपना पास जमा किया है या मुझे यार दोस्त फ्रेंड वगैरह ने दिया है, हाथ खर्च से बोले तू लख अभी तेरे को धंधा चालू करना है, तो जिसको मैं अभी लायबिलिटी दिखा रहा हूं ओनर्स कैपिटल, मतलब ये मैं हूं। एंड उसके सामने कुछ मेरी एसेट्स लगती है। मैंने एक चेंज कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, पे अटेंशन गाइस, एवरीबॉडी पे अटेंशन। मैंने यहां पे अपनी कैपिटल को निकाल दिया, ये मेरी बैलेंस शीट का वर्जन है, और मैंने यहां पे लिख दिया जब मैंने ऐसा लिखा था तो मेरी बीवी मेरे को बोलती है मी का मतलब, मी का मतलब माय डियर फ्रेंड्स मैं। कैपिटल आप है ना, तो अपने आप को लिखो ना कि मैं ये हूं, मैं। राइट इट, वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब हम धंधे में अपना पैसा लेके आता है तो लाइफ में हम अपने आप को लेके आए ना, तो मैं कैपिटल हूं मेरी लाइफ की इस बैलेंस शीट में, मेरे फैमिलीज की बैलेंस शीट में मैं कैपिटल हूं, मैं ही मूडी हूं, मैं ही स्टार्टअप पैसा हूं। शांति, कोई रिएक्ट नहीं करना, पहले सुनो शांति से। तो मैंने जब लाइफ की बैलेंस शीट बनाई, मैंने फैमिली की बैलेंस शीट बनाई, तो कैपिटल कहां से ढूंढना? तो मैं खुद हूं ना। तो मतलब एक औरत अपने आप को लिख सकती है, एक मर्द अपने आप को लिख सकता है, पति अपने आप को लिख सकता है, बेटा अपने आप को लिख सकता है, चाहे वो 4 साल का बेटा हो, 14 साल का बेटा हो, 24 का हो, 25 का हो, 30 का हो, 35 का, कोई भी व्यक्ति हो अपने आप को लिख सकता है कि आई एम माई सेल्फ द कैपिटल इन द वंडरफुल बैलेंस शीट ऑफ लाइफ एंड माई फैमिली। तो आप लोग सोचोगे कि सर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? बताता हूं। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, ओरिजिनल फाइनेंशियल वाला बैलेंस शीट, तो उसमें हम क्या करते थे, यहां पे लिखते थे ओनर्स कैपिटल, और फिर एसेट साइड पे हम कुछ क्लासिफिकेशन करते थे जिसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Welcome to the application of me as a capital, my dear friends. Welcome to the application of me as a capital, my dear friends. मैंने भी क्लासिफाई किया है 3 एस्पेक्ट्स। 3 एस्पेक्ट्स। The first aspect is
सेम फिक्स्ड एसेट्स, नो चेंजेस टू दैट। पर उसमें क्या आएगा वो अपन 2 मिनट के बाद करते हैं। ओके, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है करंट एसेट। सीए मतलब यहां पे कोई अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा, गड़बड़ हो जाएगा। करंट एसेट, ओके, एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव गाइस। मी फिक्स्ड एसेट, मेरा फर्स्ट कंसेप्ट इज a very important concept, something that's very close to my heart, something very close to me. I hope everybody can see on this. मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूं तो क्या है कि प्रॉपर्ली दिखेगा, तो इट विल बी वेरी गुड विजिबिलिटी ऑल्सो, एंड आई थिंक स्क्रीन पे भी बेटर दिखेगा, बड़ा स्क्रीन हो जाता है। ओके, तो इट विल बी अ गुड थिंग टू सी। ऑलराइट, फिक्स्ड एसेट्स, फर्स्ट कंसेप्ट, एंड मी एज अ फिक्स्ड एसेट गाइस, हम सबके पास है ना एक चॉइस है। जितना हम हमारे पास है उस सबको यूज करने का हमारे पास एक चॉइस है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, रिमेंबर दैट। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसको यूज करने का हमारे पास एक चॉइस है। उस चॉइस का सबसे पहला वर्ड, पहली चीज जो आती है एंड जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, द वर्ड इज चूज टू हेल्प। चूज टू हेल्प, हेल्प मेरा पहला वर्ड। मैं अपने आप पैसा किसी को दे सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने आप को देता हूं कि नहीं, ये सोचो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे को बोलता है, मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे को बोलता है सर आप आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो बता दो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने बोला बेटा गाड़ी मत भेज। बोले क्यों? गाड़ी तो भेज के बहुत, मेरे पास उबर ओला का भी तो नंबर है, मैं खुद आ सकता हूं। अरे तू मुझे लेने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले 100% सर। उसके साथ बैठना, काम करना विल मेक सेंस। व्यक्ति को आप चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। कल को एक भाई को तकलीफ है तो दूसरा भाई जाके उसके बाजू में खड़ा रहता है, उसका खाली हाथ पकड़ता है ना, देखो उसके में डबल ऊर्जा आ जाती है, डबल ऊर्जा आ जाती है, मॉरल सपोर्ट आ जाता है। वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि नल्ला है, एकदम यूजलेस है, ऐसे ही खाली खड़ा रहता है, लेकिन सिर्फ बाजू में फिजिकली खड़ा है, उसमें उस भाई की ताकत डबल ट्रिपल हो जाती है, उस बैंक की ताकत डबल ट्रिपल हो जाती है। चूज टू हेल्प गाइस। यू एज एन कैपिटल शुड बी डिप्लॉयड इन हेल्पिंग अदर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। आपकी जब तक क्षमता है, ताकत है, मैंने फिर बोल रहा हूं, समय एंड एनर्जी की बात कर रहा हूं। पैसे से तो बहुत लोग मदद करते हैं, एनजीओ में पैसे लगाते हैं, नॉन ऐसे फंड में लगाते हैं, ट्रस्ट में लगाते हैं, गौशाला में लगाते हैं, यहां लगाते नहीं यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपकी खुद की बात कर रहा हूं। गाइस प्लीज मेक अ वंडरफुल बैलेंस शीट ऑफ योरसेल्फ एंड सी कि मैं एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में कितने लोगों को हेल्प किया है, सो दैट दे राइज बियॉन्ड नॉर्मल, सो दैट दे राइज बियॉन्ड वेयर दे वर। जहां से है वहां से वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। And if they can rise beyond that, guys, trust me, that's going to be our biggest contribution. क्यों? क्योंकि हम लोग का एक प्रॉब्लम है गाइस, प्रॉब्लम है। कुछ लोग हेल्प जरूर करते हैं, कुछ लोग हेल्प जरूर करते हैं, but then there is an element of, little bit element of, sometimes, not always, sometimes selfishness. कभी कभार कोई हेल्प करता है तो फ्यूचर बेनिफिट के लिए हेल्प करता है। ये लैंड जैसी फिक्स्ड एसेट है जिसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ रहती है, रहती है। आपने किसी को मदद किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, जस्ट पे अटेंशन टू मी, जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी। मैं बीच में एक छोटी सी बात शेयर कर दूंगा, इट विल बी लिटिल ऑफ बीट, पर ध्यान रखना। आई वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यस्टरडे एंड दैट्स द पॉइंट हियर। यू नो गाइस, हनुमान हनुमान है क्योंकि उसने यहां से लंका तक का जंप किया, लेकिन उसको अपनी ताकत का याद कराने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम जाम्बवन है। एंड ही इज द पर्सन who made him realize कि बॉस तेरे में ये ताकत है, तू ये कर सकता है। उसकी पावर्स को उसने रिमेंबर कराया, जंप कर दिया। लोग हनुमान को वर्शिप करते बेचारे जाम्बवन को भूल गए। जाम्बवन की बैलेंस शीट देखो, एक तरफ वो खुद है, दूसरी तरफ उसने हेल्प किया किसी को, वो बंदा आज किधर पहुंच गया। गाइस, जो बंदा हेल्प करता है बहुत बार उसका नाम दिखेगा नहीं, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उसको पहचाना नहीं जा सकता है। ही इज ए हिडन पावर।
इज हिडन पावर, ही हैज इमेंस पोटेंशियल, लेकिन जब वो हेल्प नहीं करता है तो वो बंदा जो है जिसके वो पोटेंशियल वो वहीं कहीं पड़ा रहता है। मैं हर व्यक्ति में ये पोटेंशियल देख सकता हूं, मेरे हर स्टूडेंट में मैंने ये ताकत देखी है। और जब मैं देखता हूं कि उसको थोड़ी सी, मैं आपको सच बताता हूं गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस वर्ड, आपकी मदद की ना उसको बहुत जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी सफिशिएंट है बंदे को किधर तक पहुंचाने के लिए। बी अ गुड पर्सन टू जस्ट सिंपली हेल्प। अपने आप को कैपिटल बनाओ और दूसरे में घुसो और उसको मदद करो, मदद करो। कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है बिजनेस में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है लाइफ में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है रिलेशनशिप में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है अपने करियर के प्लान में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है कोई ऑर्डर में, कोई बंदा लॉस्ट हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ रीच करने में। आपने एक छोटा सा हाथ ही पकड़ लिया ना गाइस, गेम चेंज हो जाएगी, गेम चेंज हो जाएगी। एंड ये बहुत बड़ी ताकत है। हम में से कुछ लोगों ने किसी भी क्या कहते हैं ब्लाइंड व्यक्ति को रास्ता क्रॉस कराने में कभी मदद की होगी और अपने आप को उसको कहते अलग, ऐसा वाह मैंने उसको मदद किया, ऐसा फीलिंग आया होगा, एक वाव फीलिंग आया होगा। आया कि नहीं? व्हाई नॉट मेक इट अ डेली रूटीन? व्हाई नॉट मेक इट अ डेली रूटीन? व्हाई नॉट? क्यों क्यों? क्योंकि कभी बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं उसको क्यों हेल्प करूं। अरे यार तेरा जा क्या रहा है? थोड़ा बहुत समय, थोड़ी बहुत एनर्जी ठीक है, किसी को हेल्प करोगे बंदे की तुमको इतनी ऊर्जा सामने से मिलेगी, डबल ट्रिपल पावर हो जाएगा, डबल ट्रिपल पावर हो जाएगा, रुकोगे भी नहीं आप, इतनी ताकत आ जाएगी। लेकिन कब वो हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? मतलब at many point of time I see people even giving an evaluative thought कि whether I should help or not. rather मेरे हिसाब से कर दो, मदद कर दो, आज नहीं तो कल आपको उसका एक जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स गाइस ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट ऑफ योर ओन सेल्फ, ऑफ अ फैमिली, ऑफ योर लाइफ। दैट मैं इधर हूं, पैसा नहीं, मैं हूं इधर, और मैं कैसे अप्लाई करता हूं। एक छोटे सा एग्जांपल देता हूं। एक मेड आती है घर पे जो खाना बनाती है, एक वाइफ होती है, एक लेडी होती है, वो देखती है कि खाना बनाने का इसका बड़ा इंटरेस्ट है, उसको बोलते तुमको कभी चाइनीज आता है बनाने का? बोलते नहीं आता है आंटी जी, मैडम जी, बीवी जी, भाभी जी सिखाइए। वो सिखाती है, इसका क्या गया टाइम? अबे घर में बैठी थी, उसने उसको चाइनीज बनाना सिखा दिया। नाउ दैट मेड वेंट टू समबडी एल्स और उसने जाके चाइनीज बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसको एप्रिसिएशन मिला, शायद उसको एक पे राइज भी मिल गया, उसको एक नई जॉब मिल गई, अब जाके आगे बढ़ते बढ़ते कोई बड़ी कंपनी में शेफ बन गई, कुक बन गई, वगैरह 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 बन गई। कंट्रीब्यूशन वो लेडी का था। वो याद रखे नहीं रखे तेल लेने गया यार, शायद इसके बाद ये दोनों दूसरे को देखेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो लेडी ने उसको सिखाया ना, उसके मन में ऐसा हुआ यार मजा आ गया, मतलब आई कुड टीच समबडी हाउ टू मेक गुड चाइनीज फूड। दैट्स इट, स्टोरी ओवर हो गई माय डियर फ्रेंड्स। वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, क्यों? क्योंकि यहां पे आप हो ना, हमारी कैपिटल है ना कुछ नहीं, मैं हूं, तो वो हमारा निजी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। नहीं गाइस, टुडे इट्स अ रेयरिटी, टुडे इट्स अ रेयरिटी। मतलब अभी एक स्टोर में गए थे हम लोग, एंड मैंने जब बोला ना यूके, तो एक स्टोर में गए थे, एक बुजुर्ग लेडी बेचारी बहुत सारी चीजें अपने ट्रॉली पे रख रही थी, बेचारी ऐसे घुमाई तो धड़ाक सुन सब कुछ गिर गया। बाजू में एक जवान लड़का चल रहा था, उसने सब कुछ वापस रख दिया, बोलते आंटी रहने दो, मैं ट्रॉली को धक्का लगा देता हूँ। उसको थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ, कोई भी कारण से हुआ होगा, वो उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर हुआ हो सकता है, एनीवेज छोड़ दीजिए। तो रेजिस्टेंस हुआ, इस लड़के ने उसको बड़े मस्त स्माइल तरीके से बताया, ऐसा करके डोंट वरी इट विल बी सेफ। और फिर उसने धक्का लगाया, धीरे से रखा, साइड में रखा, उसको बिलिंग में भी मदद किया, बाहर आ गया। मैंने उसको बुलाया, आप इतना मदद किए उसको? बोले उसके साथ कोई नहीं है, इतना भारी सामान कैसे, मैं तो गाड़ी में भी रखने में मदद कर लेगा। बोले उस साइड पे एक हेल्पर होता है तो वो मदद कर लेगा। तब तो ठीक है। उस दिन उसको शाम को वापिस आ रहे थे, मेरे को बोलते हैं आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, अच्छा नहीं लग रहा है। दैट स्पार्क हैज गिवन दैट एलिमेंट।
ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपनी खुद की निजी बात बताता हूं. एवरी डे नाइट आई कैन स्लीप एट ईज. व्हाई? बिकॉज एवरी डे नाइट आई टेल वन स्टोरी ऑफ द पर्सन टू whom I have helped, to my wife, and she says, wow, fantastic, and then I go to sleep. Then I go to sleep. आपके नीचे के व्यक्ति हो, आपके आजू बाजू का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को मदद करने से जरा भी, एंड दूसरा जताने का जरूरत नहीं है कि यू हैव हेल्प्ड. डोंट, प्लीज डोंट. Why? Because it's family. It's family. If you're going to help your family member, if that family member goes up, done better, etc., तो आपको उसको जताने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको मदद किया है, मैंने उसको मदद की. नेवर. बहुत सारी चीजें हम सब इतनी बार लाइफ में कर चुके होते हैं, एंड अच्छा है, करते रहना भी चाहिए. आप कोई सिटी में मूव हो गए, उसके पीछे पीछे आपने आपके यंगर ब्रदर को लेके आए, बड़े भाई को लेके आए, समाज के 4-5 और बच्चों को फायदा करा दिया, उसी सिटी में सेटल होने में मदद कर दिया, आपने कंट्रीब्यूट किया है. गाइस, डू दैट. एंड जब आप ऐसा करोगे, ट्रस्ट मी, जो आपको आनंद आएगा, जो आपको सेटिस्फैक्शन आएगा, विल बी ऑफ नेक्स्ट लेवल. सो लर्न टू प्लीज go out bindas, help. You are the capital. आप सब कुछ हो, आप खुद मूडी हो. और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, मूडी से तो मिलकत बनती है. गुजराती वर्ड हो जाते हैं, लेकिन मूडी से मिलकत बनती है. मिलकत मतलब एसेट, मूडी मतलब कैपिटल. सो कैपिटल हेल्प्स यू बिल्ड एसेट. तो मूडी से मिलकत बनती है. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है. मैं 3 पॉइंट रखा है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज your investment. Second point we come, and that is, एक सेकंड, तो यहां पे आ गया वर्ड हेल्प. यहां पे आ गया वर्ड, मैं वर्ड आर लिख रहा हूं. किसी को चैट बॉक्स में टाइप करने की इच्छा है तो कुछ टाइप कर सकता है कि कौन सा ये वर्ड हो सकता है. मैंने वर्ड आर लिखा है. मर्जी आपकी है, आपको टाइप करने का है तो टाइप कर सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में देख लूंगा आर से कौन सा वर्ड होना चाहिए, आर से कौन सा वर्ड होना चाहिए, कौन सा वर्ड होना चाहिए. एंड मैं इतना खुश हूं कि द लार्जर स्कीम ऑफ पीपल एंड एवरीबडी इज थिंकिंग करेक्टली. मुझे ऐसा लगता है दीपल मैडम, सुजाता मैडम, कि आज हमारा सेशन सार्थक होने को जा रहा है, सार्थक होने को जा रहा है. और ओनली फॉर द रीजन बीइंग कि जो लोग हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो लोग 110% उस पॉजिटिव थॉट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. द वर्ड इज यस. Many people got that right. Relationship, my dear friends, relationship, very important point. पर मैंने इसको इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई किया है. इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई किया है. एक बहुत बड़ा व्यापारी है, आप लोग सब जानते हैं, इसलिए नाम लेना जरूरी नहीं है. लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि वो व्यापारी का बिजनेस 3-4 बार बना बड़ा एंड फिर डिस्ट्रॉय भी हो गया. पर उसने अपनी एक स्टोरी लिखी है जो पब्लिश्ड मटेरियल में है, और उसकी स्टोरी में उसने एक लिखा है, whatever the day of life and whatever the period of life, I made sure that I never allowed my relationships to die. Whatever the day and time of the year, etc., I made sure I never allowed my any relationship to die. हो सकता है कि मेरे को दीपल मैडम को देख के अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आता है, पर यार आता है, बता दो, खत्म करो. लेकिन साथ में बैठ के चाय पी सकते हो, लेकिन मन में ग्रज रखोगे तो रिलेशनशिप बनाओगे नहीं, रातर हमेशा घृणा करते रहोगे, घृणा करते रहोगे. और घृणा करते करते इतना अंदर कलुषित हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम उसके जैसा किसी और को भी देखोगे या कोई और ऐसा व्यवहार कर देगा तो गुस्से हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, अरे यार बेकार हो गया, एकदम घटिया हो गया, ऐसा हो गया. Don't do that, guys. Don't do that. Rather, just spend time developing and maintaining relationships, guys. That's your biggest investment. Biggest investment. You don't know when it will pay back. You don't know your return on investment also. You don't know that. But it will still come. Relationship रहेगा तो आएगा. Relationship नहीं रहे, संबंध बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया.
संबंध होगा तो विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा तो बिजनेस आएगा, संबंध होगा तो विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा तो कोई आपके ऊपर कोई चार बात करेगा, संबंध बनेगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो फैमिली में भी आपकी बात सुनी जाएगी। आप मेरे को कभी मिलते ही नहीं, और आप मेरे को मिलते नहीं तो आई हैव नो रिलेशनशिप विथ यू, एंड बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद यू, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, एंड बिकॉज़ देयर इज नो ट्रस्ट, द आइडिया इज आई विल नेवर बी इवन डूइंग एनी वर्क विथ यू, फॉरगेट अबाउट बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में आपके साथ काम नहीं करूंगा। अरे अपन 3-4 जन मिलके एक संस्था में मेंबर बनते हैं, एंड इफ यू हैव टू ओपन ए जॉइंट बैंक अकाउंट तो भी मन में ऐसा आएगा, है मैं इसके साथ खोलूं, नहीं नहीं ये बराबर आदमी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी मेहनत की नहीं इसके साथ संबंध बनाने की, इसके साथ संबंध बनाने की मेहनत ही नहीं की। अभी मैं एक जन को मिलने जाने वाला था, काफी टाइम से मिलने जाने का प्लान बन रहा था, लगभग 1-1.5 महीने से बन रहा था। लास्ट मिनट they changed the plan, last minute they cancelled the plan, last minute I was little upset। मैंने मेरी वाइफ को बोला ये गलत बात है, इस बंदे ने अपने को बोला था मिलने के लिए और फिर भी नहीं आए, तो ग्रजेस थोड़ा डेवलप हो गया। पर मैंने थोड़ा फॉल्ट फाइंडिंग किया कि भाई हुआ क्या, क्यों बंदा मिलने नहीं आया, मतलब मैं इतना घटिया आदमी तो नहीं हूं कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब काफी अच्छा हूं। तो उसने, मैंने पता लगा, आफ्टर फाइंडिंग आई केम टू नो उसको कुछ प्रॉब्लम था, मेडिकल प्रॉब्लम, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि मुझे तकलीफ नहीं होए, देयरफॉर दैट पर्सन डिड नॉट कम टू मीट मी। माय पर्सपेक्टिव चेंज्ड, मैं उसको मिलने गया। बोलता है कि नहीं समीश भाई आप मिलने मत आओ, मैं आपको थोड़े टाइम के बाद मिलूंगी, ठीक है, एंड इट गॉट एंडेड देयर। पर यदि मैं मेहनत ही नहीं करता, पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता, तो फिर वहीं के वहीं रुक जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा अपने को कोई स्टेटमेंट करता है मैं नहीं आ सकता हूं, तो मैं उसके पीछे पड़ता हूं, भाई क्यों नहीं आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्या ऐसा क्या है। कोई बंदा किसी को बोल दिया कि नहीं मैं भी ये नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, कैसे नहीं कर सकता हूं। आज एक माँ, दीपल मैडम अभी दिख रही है सामने मेरे को, उसका एग्जाम्पल है, वो माँ है, उसका बच्चा खाने को मना कर रहा है, तो उधर रुक जाएगी क्या कि नहीं अभी तक को नहीं खाना है तो मत खा, नहीं बोलती क्यों नहीं खाना है, क्यों ऐसा है वैसा है, ऐसा करके पीछे पड़ जाती है। संबंध बना है इसलिए पीछे पड़ती है, संबंध नहीं होएगा तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ने नहीं खाता है तो नहीं खाता, तेल लेने का। गाइस spend time to start and then maintain a relationship, क्योंकि that's the only investment that is going to be with you forever, that is the only investment that is going to be with you forever। बंदे के पास पैसा आज है कल नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं सही कह रहा हूं, और आप लोग पे अटेंशन करो गाइस, जस्ट लुक एट मी, वेरी रिसेंटली आई हैव एन एग्जांपल। इनके पास एक टाइम पे इतना पैसा था, इतना पैसा था कि आप समझ नहीं पाएंगे, उतना पैसा था, मतलब मैं आपको जो भी उदाहरण दूंगा वो पैसे का कम ही पड़ेगा, उतना पैसा था, रियल एस्टेट से लेके ये वो ऐसा, मतलब आप समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल पे था, एंड वो भी मुंबई में। सब कुछ खलास हो गया, पर जितने भी लोग जुड़े थे उनके साथ वो पैसे के कारण, स्वार्थ के कारण जुड़े थे। संबंध पैसे का नहीं, संबंध व्यक्ति का होना चाहिए। मेरी कैपिटल के साथ किसी का रिलेशन आएगा ना, खलास, कैपिटल के कारण रिलेशन आएगा, खलास। आप मेरे में ध्यान से सुनो, लिसन टू मी गाइस वेरी क्लियरली, इफ योर रिलेशनशिप विद अदर पर्सन इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल दैट यू हैव, इट्स रॉन्ग, इफ इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स करेक्ट। इसलिए मैंने बोला बैलेंस शीट, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यू पुट योर सेल्फ एज द कैपिटल। मेरा संबंध होना चाहिए यार, हो सकता है कि टुमारो आई माइट नॉट बी द सेम पर्सन, मान लीजिए कल को मेरे को कुछ होता है तो शायद मैं ऐसा बोल नहीं पाऊं, कुछ और हो जाए, कुछ नहीं कर पाऊं, तो क्या मतलब अभी तो स्वामी सर यूजफुल नहीं रहे तो छोड़ दो, तो यार रिलेशन बने ही नहीं है, रिलेशन बने ही नहीं है। लेकिन कोई भी परिस्थिति में उस व्यक्ति के लिए अपने को याद आता है, उस व्यक्ति के लिए फील होता है, उस व्यक्ति के लिए मैं आगे जाता हूं, आउट ऑफ वे जाता हूं, एंड तब जाके मैं उधर खड़ा रहता हूं, तो वो रिलेशनशिप का फंडा है, वो रिलेशनशिप का एक फंडा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक भाई साहब बीमार हो जाते हैं एंड वो कुछ लोगों को शेयर करते कि मैं बीमार हूं, उसको पूरे इंडिया से मदद पोर इन हो जाती है,
इमेजिन उसने अपने आप का कैपिटल को कितनी हद तक डिप्लॉय किया था, उसने अपने आप की कैपिटल को कितनी हद तक रिलेशनशिप में डाला था कि आज सबके सब उसके लिए तैयार हो गए। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप माय डियर फ्रेंड्स। मेक श्योर दैट वी डू समथिंग जिसके कारण आता है। मैं 2 पॉइंट एजेंडा इसके नीचे मेंशन करना चाहता हूं, गाइस पे अटेंशन। पॉइंट नंबर 1, how do you start and maintain a relationship? How? मेरा एक वर्ड है, ध्यान से सुनना। Can you identify the gap between the need of that person and him or her, मतलब जो भी है, उसको चाहिए कुछ और वो यहां पे है, इस दोनों के बीच की जो गैप है ना, वो कुछ है। आप उस गैप को कंप्लीट करने में मदद करो। मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनो। Somebody wants to go to A. He is at some level. This is the gap. You identified it or you came to know about it by talking, by knowing, etc. You help that person to पकड़ के यहां तक पहुंचा दो। उतना कर लो। उतना कर लो। The moment if you can help to bridge this and this together, करीब लेके आ सकते हो, उसकी मदद करके, उसको पुल करके बोले चल 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 तेरे अपने गोल की तरफ लेके जा। उस बंदे के साथ आपका रिलेशनशिप है ना गाइस, आज का नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। कल मेरे बच्चे का एक फोन आता है, मेरे से कुछ बात करता है, अपने मन की बड़ास निकालता है। फॉर ऑलमोस्ट लगभग 20 मिनट्स हम बात करते हैं। बात खत्म करते मुझे पता चला कि कुछ लीगल प्रॉब्लम आया है। उसने बात करके मैंने फोन काटा। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 2 कॉन्टैक्ट भेज रहा हूं, उनके साथ बात कर। शाम को जिसका कॉन्टैक्ट भेजा था उसका फोन आ गया, बोलते हैं सर आपने जिस आदमी का लीड दिया था उस बंदे को मैंने मदद कर ली है, होपफुली उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। रिमेंबर द वर्ड गाइस, होपफुली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। रिलेशनशिप, किसी को जाना यहां पे है, वो बंदा यहां पे है, प्लीज ट्राई एंड हेल्प दैट पर्सन टू गो क्लोजर टू हिज ड्रीम, क्लोजर टू हिज गोल, क्लोजर टू हिज एस्पिरेशन। रिलेशनशिप लाइफ टाइम बन जाएगा। हमारी एक फैकल्टी है, वो बोलते हैं कि मैं हमेशा से चाहता था सिखाने का, लेकिन ऐसा चांस नहीं मिला। परिमल सर ने मेरे को जिस तरह से मदद किया है, जिस तरह से ये किया, दैट्स इट। गाइस आपको यकीन नहीं होएगा, मेरा पहला सेशन जब भी मैंने कभी लिया था, इट वाज अ एब्सोल्यूट होपलेस सेशन, एकदम बकवास। इतना बकवास कि मेरे को खुद को मालूम पड़ गया बकवास है। उस दिन परिमल सर मेरे को मिलने आए थे, तो मेरे को आके ये नहीं बोला कि कहां क्यों कैसे बकवास हुआ। मेरे को आके बोलते हैं चलो समीश भाई मेरे को बताओ कि आपने ये सेशन लिया, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन कौन सा लेंगे। मुझसे ये बराबर नहीं गया, वो छोड़ो, नेक्स्ट सेशन कौन सा लेंगे ये बताओ। नेक्स्ट सेशन कौन सा लेंगे। ही इज हेल्पिंग मी कम क्लोजर टू माय ड्रीम। हेल्पिंग वर्ड पहले था जो मेरी फिक्स्ड एसेट थी, रिलेशनशिप दूसरा हो गया, इन्वेस्टमेंट। गाइस अपने आप को देखो, कैपिटल मत देखो। मैं फिर बोल रहा हूं, पैसे को बैलेंस शीट से निकाल के अपने आप को देखो कि क्या मैं किसी के संबंध बनाने में उपयोगी, क्या कहते हैं, वाहन हूं, मतलब मीडियम हूं, या एम आई ए व्हीकल टू बिल्ड समबडीज रिलेशनशिप। एंड इफ इट इज यस, यू आर डूइंग ए फैबुलस जॉब फॉर योरसेल्फ। I told you 2 points. So one is that the person has an aspiration, you are helping that person to bridge that aspiration, that will help you to build relationship. The second fundamental, if possible, stand by in the decision taken by that person. हो सकता है गलत है, हो सकता है गलत है, इसलिए उसको आपको वार्निंग भी देना पड़ेगा कि भाई तेरे को मालूम है तेरा डिसीजन गलत है, तेरे को मालूम है ना, बट फिर भी खड़ा रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब उसके साथ खड़े हैं ना, तो उस व्यक्ति को आपके ऊपर एक फॉलबैक ऑप्शन है। हम लोग पता है बहुत लोग आर्टिफिशियली एक बैसाखी को लेकर
लेके चलते हैं या कोई क्रचिस को लेके चलता है, जब हम इसको लेके चलते हैं तो इसको जब ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं तो इसके ऊपर हमारा पूरा भार है, पूरा डिपेंडेंसी है। घर की दीवार के बाहर ऐसे झांकते हैं तो ऐसा करके खड़े रहते हैं। आप में से बहुत लोग बुर्ज खलीफा गए होंगे, बुर्ज खलीफा जाते हो तो फोटो निकालते होंगे, और फोटो निकालते ऐसा टेक, ऐसा हैंड रेस्ट करते हैं उसके ऊपर और यूं करके निकालते, क्रैक सेल्फी है, इतना डेप्थ आता है, और फिर अपने आप को उधर पोस्ट करते हो, किसको इधर भेजा इधर भेजा, ऐसा करके मजा करते हो। 1 सेकंड के लिए वो जो लोहे का सरिया है ना उसको हटा दो और फिर अभी फोटो निकालो, फट जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी रेस्ट किसके ऊपर करेंगे, किसके ऊपर ये करेंगे, जबकि आपका वो फोटो लेना राइट निर्णय है। अभी कभी कहीं गिर गए तो, फिसल गए तो हो सकता है निर्णय गलत है, लेकिन फिर भी वो पैरापेट है, वो बॉर्डर है, वो रेलिंग है जिसके ऊपर यू आर रेस्टिंग योर हैंड। बिकम दैट फॉर समबडी गाइस, बिकम दैट फॉर समबडी। गलत है उसको बता सकते हो कि बॉस तुम गलत हो, तुम्हारे इस डिसीजन में हो सकता है ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ये भी तुम उसको बता सकते हो, फिर भी आप उसके साथ खड़े हो। वो बंदा बोलेगा तू सच कह रहा है यार, ये प्रॉब्लम तो आ रही है, मैं तो पहले बोला था, चल यार खड़ा हूं तेरे साथ तो कुछ रास्ता भी निकाल लेता हूं, आई ट्राई एंड फाइंड अ वे, ओके, पर थोड़ा मुश्किल होएगा, ओके, अरे ओके ना। इट्स बहुत मजा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत मजा है, बहुत मजा है। आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, बहुत बार आप खड़े रहते हो ना, उसी में उस बंदे की इतनी वैल्यू बढ़ जाती है कि लोग बाहर से उसको फाइनेंशियल मदद करने भी आ जाएंगे। यस यस, बट हम लोग के पास वो वक्त या समय या एनर्जी नहीं है किसी व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। स्टैंड अप विद दैट पर्सन। गलत डिसीजन लेने जा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक लड़की है, बोलती मेरे को ये घर लेने का, मेरे को ये लेने का। मैं उसको बोलता हूँ क्यों लेने का है, जब कभी उसका संबंध में विचार आता है फिर मैं उसके साथ थोड़ा बात करता हूँ, बोलती हाँ बराबर है, अभी नहीं ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए, एंड देन टेपर डाउन हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, बाद में वंस अगेन बैक टू नॉर्मल। स्टैंड बाय दैट पर्सन, ताकि कभी कभार उसको गलत जगह जाने से भी अटका सकते हैं, पर आप छोड़ देते हैं, उसको जाना है तो जाए, मैं क्या करूं, तो आपका संबंध बनेगा ही नहीं। So guys, you as a capital, first deployment in the fixed asset, learn to help. Second, relationship, investment. And अब आता है current asset, and देखता हूं अभी कौन सही पड़ता है। Current asset should be an interesting thing. Current asset, मैं उसका word आता है L से। Any guesses on this? Let me see. Chat box में देख रहा हूं कि anybody who can guess on that. Come on guys. L से हो सकता है कौन? L से. Just think about it. Okay, I'm getting words, but it's going to be difficult this time. Let me see. Keep continuing, guys. Keep typing it. I'm very interested to see कि लोग क्या सोचते हैं L से. बड़ा थोड़ा मुश्किल होने वाला है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है. Doesn't matter, guys. It's a very, very important foundation of you as a capital. Anyways, guys, time समय को भी देखते हुए मुझे आप लोग को एक वर्ड देने का है, and that is also equally important in a family business, in a family, and that is, or in a life's balance sheet is correct. Learn to let go. Learn to let go. मैं ही करूंगा, मैं ही हूं सब कुछ, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी। घर का डिसीजन मैं लूंगा, ऑफिस का डिसीजन मैं लूंगा, ये मैं। अरे भाई, सब कुछ आप करोगे तो नया व्यक्ति का विकास ही नहीं होगा, आपके आजू बाजू के परिवार का विकास नहीं होगा। आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो नेक्स्ट आदमी ग्रो करेगा, छोड़ोगे तो नेक्स्ट आदमी आगे बढ़ेगा, छोड़ोगे तो आपके फैमिली में एक सक्सेसर तैयार होगा। नहीं मैं ही करूंगा। अभी मैं गया था बेंगलोर और एक लड़का है जो मेरे को मिला था, गाड़ी में बैठा, उसके फादर बोलते हैं मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। तो बोला ये भी मेरे को ले जा सकता नहीं, इसको नहीं मालूम है कैसे जाने का, मेरे को मालूम है फास्टर रूट, मेरे को मालूम है शॉर्टर रूट, मैं फटाफट पहुंचा दूंगा। खत्म यार, आपका बेटा कभी ग्रो ही नहीं करेगा। मत करो ऐसा।
लर्न टू लेट गो, लर्न टू लेट गो। बंदा दूसरा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का चांस दो। मैं हट रहा हूं, इट इज मेकिंग सेंस कि जब मैं कोर से पेरिफेरी की चारों तरफ जाता हूं, मैं बाहर की तरफ जाता हूं और दूसरे व्यक्ति को आगे आने का मौका देता हूं। ट्रस्ट मी गाइस, जिसको आप चांस देते हो उसको वो काम करने लगेगा। आप फ्री हो जाओगे, आप नया काम करने के लिए फ्री हो जाओगे, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन यदि सब कुछ आप ही करोगे तो 110% जिंदगी भर वही करोगे। मेरे पास एक मेंटर है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो मेरे को हंसते हंसते बोलते हैं, समीश भाई ऑफिस में ही खोलता हूं, ऑफिस में ही बंद करता हूं, 9 बजे पहुंच जाता हूं, 9:15 बजे मेरा स्टाफ आता है। मैं प्यून को बोलता हूं, बेटा तुम्हारी कंपनी कैसी चलती है? बोले बहुत मस्त है सर, मैं एक सेठ रखा है जो दुकान खोलता है दुकान बंद करता है। कंफ्यूज हो गया, प्यून कौन है सेठ कौन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब सेठ आके बोलता है कि मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 9 बजे निकलता हूँ। एम्प्लॉय बोलता है मैं 9:15 9:30 बजे आता हूँ, 5 बजे निकल जाता हूँ। मैं ही सब कुछ। अरे मैं चार्टर्ड अकाउंट का एडवाइस करता हूँ कैसे टैक्स रिटर्न्स बनाने का। अरे वाह। मैं कस्टमर को बोला कि तेरे को ऐसा करने का। अरे वाह। मैं एम्प्लॉय को बोला तेरे को ऐसा करने का। अरे वाह। भाई सब कुछ तू ही करता है तो आगे कोई बंदा तैयार होगा ही नहीं। करंट एसेट हैं। कोई नई स्किल सीखो, किसी को सिखाओ, निकलो आगे बढ़ो। कोई नई स्किल सीखो, किसी को सिखाओ, आगे बढ़ो। कोई नई स्किल सीखो, किसी को सिखाओ, आगे बढ़ो। कीप मूविंग गाइस। आपको पता नहीं चल रहा है, दो चीज हो रही है। एक आप खुद सीख रहे हो, किसी को सिखाने के लिए यू आर डूइंग इट एट बेटर, यू आर डूइंग इट एट मास्टर लेवल। यस, बिकॉज व्हेन यू टू टीच समबडी यू डू एक्चुअली बेटर। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल तो अच्छी हो ही गई, आपने किसी और को सिखा दिया, आप आगे चले गए। करंट एसेट हैं, फटाफट चेंज होता रहेगा। करंट एसेट का मतलब होता है 6-8 महीने साल भर में उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। सेम थिंग, लर्न टू लेट गो गाइस। पर मैं अपने आप को केंद्र से बाहर निकाल देता हूं। आज तक कोई भी इवेंट मैं करता था, अब मेरा बेटा करता है और मैं दूर से देखता हूं, गलती भी करता है। दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मेरी रिसेंट ट्रिप में पूरा आइटनरी उसने बनाया, 2-3 बार गलती हो गया, बस छूट गया। आई वाज स्माइलिंग, मेरे को आके बोलता डैडी गलत हो गया। मैंने ओके ओके, जान नहीं जा रही है यार, बट नेक्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी मच बेटर, मच 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 बेटर। एंड ये चीज है, छोड़ते हो छोड़ दो। छोड़ दोगे तो बंदा कोई नया आएगा जो ग्रास्प करेगा, नया पकड़ेगा, एंड जब नया पकड़ेगा तो ग्रोथ करेगा, आपका ग्रोथ होगा। मैं सच कह रहा हूं, आपका ग्रोथ होगा। जस्ट इमेजिन, यदि एडमिशन काउंसलिंग भी मैं करूंगा तो दीपल मैडम का क्या होगा? बेचारे बोलेगी कि सब कुछ आप ही करते हो तो मैं क्या करूं। पर अभी वो करती है, मेरे चांस मिलता है, मैं उनको और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं तो वो सीखती है, तो एक स्टेप आगे जाती है। और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, वो एक स्टेप और आगे जाती है। कहीं ना कहीं शी इज गेटिंग बेटर, आई एम हैप्पी। वो जितनी और ग्रोथ करेगी उतना अच्छा है। दैट इज द इंटेंशन। पर क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ना है। अपन को छोड़ना शुरू कर देंगे। द मोमेंट अपन छोड़ना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपने आप को फ्री करते हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग फ्री, यू हैव टाइम टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एक नहीं और 15-20 आदमी को तैयार करो। मतलब इमेजिन गाइस कि इफ एवरीथिंग वन पर्सन वाज टू टेक, आई मीन डू, you would have never seen companies like Reliance's or Tata's to happen only. They found people जिसके ऊपर उन्होंने डेवलप करा, तू बढ़ आगे। उसमें कुछ गलत डिसीजन भी हुए होंगे, बहुत गलत डिसीजन हुए होंगे, फिर भी उन्होंने दूसरों पे लगाते गए, लेट गो किया, छोड़ते गए। हर आदमी को ऊपर जाना छोड़ दिया, ऊपर का छोड़ दिया, ऊपर का छोड़ दिया। परिवार में सेम थिंग, परिवार में सेम थिंग। नया कोई फैमिली मेंबर को उसने आने शुरू कर दिया, यंग लड़का है, अब फादर है, आपका बेटा बिजनेस में आने लगा, आके उसने बोला कि डैड लाइए ना, मैं ही ये काम कर देता हूं। मेरे को तो मालूम ये करेगा ही नहीं बरोबर, और फिर आप उसको काम नहीं देते हो, वो बंदे में कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा। हाँ बेटा कर ले, पर पापा कैसे करने का, ये ऐसा करने का है, और तेरे को ये रमेश अंकल सिखा देंगे। रमेश अंकल अपना बहुत पुराना एम्प्लॉय है, दिखा दे, सिखा देंगे, डन हो गया काम। आया रमेश अंकल वापिस आते हैं, सर जी आपके बेटे ने वो काम तो किया लेकिन थोड़ा जोल जल हो गया, क्या हुआ? ठीक है कोई बात नहीं, मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। पर उस प्रोसेस में आपने जो आपके बेटे को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया ना, वो इमेजरेबल है, इमेजरेबल। ताकत नहीं है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को उस कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करने की, लेकिन करता है। एक फादर है मैं जिसको जानता हूं, एंड उस फादर ने अपने बेटे को एक बिजनेस का चांस दिया, 1 करोड़ तक का उस बच्चे से गलती हो गया, 1.25 करोड़ तक।
फादर ने गलती होने दिया, 1.5-2 साल के बाद उस 1.25 करोड़ को रिकवर किया, एंड रिकवर किया तो उसका बेटा बोलता है सॉरी डैड। बोले नहीं नहीं, मेरे को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है, टेंशन मत कर। आज once again that same father has given that son a chance to do another venture and he has given him the same budget. It's a span of only 3 years my dear friends, जिसमें ये दूसरी बार करने जा रहा है। एंड इस बार वो लड़का हर प्रिकॉशन, हर चौकसाई, हर चीज को इतनी बारीकी से देख रहा। फादर मेरे को बोलता है समीश भाई ये सब कुछ कर लेगा मैं तो फ्री हो जाऊंगा ना। एकदम शांति है, एकदम शांति है, छोड़ दिया। लर्न टू लेट गो, लर्न टू लेट गो गाइज, इट्स योर करंट एसेट। एनीवेज, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। फैमिली बिजनेस का फिलोसॉफी, थॉट flows into us very naturally. Why? Maybe because we started with the whole thing of understanding family business in possibly as much detail as we could. So far we've been successful. हम आगे भी इस प्रयत्न में चालू रहेंगे और परिवार को मिलते रहेंगे और पारिवारिक को, फैमिली बिजनेस को हेल्प करेंगे ऊपर आने के लिए। ऑब्जेक्टिव सेम ही है कि वी आर गोइंग टू हेल्प एंड कीप हेल्पिंग पीपल, रुकेंगे नहीं। और इस परसूट में वी हैव lot of people helping us, जैसे ये AIFMB है एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों का कोई भी डाउट वगैरह उसको सॉल्व करते रहेंगे एंड फैमिली बिजनेस के लिए जितना हो सके उतना करते रहेंगे। यदि मैं बताता हूं कि हेल्प करना चाहिए तो प्रैक्टिस भी करता हूं, हेल्प करना चाहिए। हमारे एक और फैकल्टी हैं जो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि समीश भाई एनीथिंग फॉर द फैकल्टी, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट, एनी टाइम फॉर द स्टूडेंट, आई एम रेडी टू ऑलवेज हेल्प। वो भी हमारे एक फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं एंड वो भी एकदम नर्म स्वभाव से सबको हेल्प करते रहते हैं। तो जो चीज हम बता रहे हैं गाइस उसका 100% आचरण करने की कोशिश भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वी बिलीव द आंसर टू ग्रोथ ऑफ our country is only and only through family business. And if somewhere we can bring about a change in that process of learning of family business, understanding of family business, we ourselves will feel we've done something good, feel satisfied, and be more inspired to do better and better, more and more in that direction. With those words, guys, I wish you all the best. Have a great time. Thank you very much. And I sincerely appreciate AIFMB, SP Jain for setting up this wonderful thing. Deepal madam and apna kon hai Akshay, I think he's gone for another meeting, and Sujata madam for setting up this. And I'm sure they must have done a lot of coordination to get more and more people here so that more and more people get benefited. So in sab ka main tahe dil se shukriya ada karta hu, and I wish that we keep meeting like this on regular occasions. I have about now next 2 to 3 minutes or maybe 4 minutes, so we can have some Q&A. In case anybody has any question to ask, please type it in the chat box to the host and panelist. We'll look at the question and then revert to you if possible. In case aapko kuch aur janna hai, so you're absolutely welcome to ask anything to me or perhaps to Deepal ma'am, but I'm sure we'll go a long way in making sure like that. Next Sunday also हम लोग एक ऐसा सीरीज का एक एपिसोड लेके आएंगे। 110% will have a topic which is equally exciting for all of us, and उसका release date भी and everything will be shared with you so that you know we can keep in touch with each other. All right, that will be the perspective, guys. Very soon we'll meet. Have a great time. Have a great Sunday. Looking forward to the India-Pakistan match, guys. Have a wonderful day ahead and a wonderful week starting from tomorrow. God bless you. Thank you very much.